Good morning, dear students. Today we are going to do composition. In composition, we will be doing a letter. Now, I will be sharing a video about the letter writing. What do you understand by the term letter? How many letters are there? Then what are the parts of letter and how do we write? What is the format and how do we write? So I have given you a sample or two which you have to copy down in your notebook, and there is one question which you have to do on your own. So you can say that the final home assignment will be the do it yourself letter which I have given to you. So this is what we are going to do today, and if you do not understand the concept of letter, then I would request you to do not jump on doing the exercise or the home assignment. It would be better that you stay wherever you are. If you do not understand, we will discuss it later on between 6 to 7 p.m. Okay, so let's start with our topic today. Learn writing a letter. Today we will learn about writing a letter. Learning about letters, you should always know the basics of letter writing. There are some basics, there are some rules, there is a format which you need to learn. So that is what we are going to do today. Letter. What is a letter? What are the parts of a letter? What are the different types of letter? Letter is a written message from one party to another containing information. A written or printed message from one person to another, usually put in an envelope and delivered as a mail. लेटर का मतलब होता है वो एक रिटन मैसेज होता है जो एक पार्टी यानी एक आदमी या एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है. उस लेटर में इंफॉर्मेशन होती है. वो जो लेटर होता है या तो वो हैंड रिटन होता है या तो प्रिंटेड मैसेज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, जिसको हम जनरली एनवलप के अंदर डालकर मेल करते हैं. पोस्टमैन उसे लेके जाता है, उसे कहते हैं लेटर. Types and parts of letters. Classification of letters. Letters are broadly classified into two categories, that is formal letter and informal letter. Letter को हम generally two broad heads में, two broad sections में divide करते हैं. वो sections हैं formal letter and informal letter. When you write a letter to the office or the principal or the teacher, it becomes a formal letter. But when you write a letter to your friend, to your dad, to your mom, to your siblings, to anybody in your friend or relatives, it becomes an informal letter. हम जब कोई लेटर अपने टीचर को, प्रिंसिपल को या किसी एक ऑफिस में हम लिख रहे होते हैं, उन लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं. लेकिन जब हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लेटर लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं. फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर अगेन देर आर मैनी टाइप्स विच आर गिवन, जैसे कि थैंक यू लेटर, रेफरेंस लेटर, एप्लीकेशन लेटर, इंट्रोडक्शन लेटर, सेल्स लेटर, फॉर्मल लेटर, बर्थडे लेटर एंड मैनी मोर. पार्ट्स ऑफ अ लेटर. लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग विद द हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर. लेटर के ये 5 बेसिक टाइप होते हैं. चाहे आप फॉर्मल लेटर लिखो, चाहे आप इनफॉर्मल लेटर लिखो, बट आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी, ग्रीटिंग लिखनी पड़ेगी, बॉडी, क्लोजिंग और सिग्नेचर, ये पार्ट्स होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड ईच पार्ट ऑफ द लेटर वन बाय वन, स्टार्टिंग विद हेडिंग. द हेडिंग इंक्लूड्स द राइटर्स एड्रेस एंड डेट एट द टॉप ऑफ द लेटर. अच्छा, हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे. पहले होता था कि हम राइट साइड पे कुछ लिखते थे एंड बाकी का हिस्सा हम लेफ़्ट में लिखते थे, बट नाउ द फॉर्मेट हैज़ चेंज्ड, इसलिए हम सब कुछ लेफ़्ट साइड पर ही लिखेंगे. सो डू नोट दैट पॉइंट. एंड हेडिंग का मतलब होता है कि जो
लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस और डेट सबसे टॉप पर होगा इन इनफॉर्मल लेटर. सो वी विल बी राइटिंग इनफॉर्मल लेटर और आज का ये पूरा सेशन इज ऑल अबाउट इनफॉर्मल लेटर. So kindly note the example is given in the video. For example, I write my address, so it is 350 5th Avenue, Manhattan, New York City, December. What date? हम कौन सी डेट पे लिखते हैं लेटर? सो हम कभी भी पास्ट डेट में लेटर नहीं लिखते. वी ऑलवेज राइट लेटर ऑन द करेंट डेट. सो जो भी आज की डेट होगी वो आप लिखोगे. जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो वही डेट आप अपने लेटर में मेंशन करेंगे. Let us understand the second part of the letter, that is greeting. The greeting means hello. It begins with a capital letter and ends with a comma. जैसे कि greeting का मतलब होता है saying hello. अब हम hello तो नहीं लिखते लेटर में, लेकिन हम लिखते हैं dear पापा और respected dad, dear friend or dear brother or sister or dear uncle, and D will be capital, rest everything will be in small. और लास्ट में हम कॉमा नहीं, हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम उसके एंड में लगाते हैं कॉमा, because we are still writing the letter, so it will be a comma. The third part of the letter is body. The body of the letter contains the main text or message. Each paragraph should be indented. अब इंडेंटेड का मतलब होता है कि स्पेस छोड़ना, बट वो मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली दो टाइप की राइटिंग होती है. एक होती है जिसमें हम थोड़ा मार्जिन जो होता है, मार्जिन से हम थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर लिखते हैं, उसको कहते हैं इंडेंटेड. अब अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो आप सब कुछ, फर्स्ट पैराग्राफ भी आपका वहीं रहेगा, वैसे ही स्टार्ट होगा, और सेकंड पैराग्राफ में बीच में आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद में आप वैसे लिखेंगे. अब अगर आप थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर पैराग्राफ लिखते हैं, इन दैट केस यू विल नॉट लीव वन लाइन इन बिटवीन द टू पैराग्राफ्स. ये एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक है जो हम लिखने के टाइम पर करते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन हरी. वी डू नॉट इवन we don't even have time to check what we have written and how we have written. But generally when we are talking about, say, exams or scoring, letters are always been scoring one, then writing a story or writing an essay. जनरली राइटिंग पार्ट में हाफ मार्क टू 1 मार्क हमेशा डिडक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स. नाउ व्हेन वी आर राइटिंग अ लेटर, यू आर एक्चुअली हैविंग full chance of scoring full marks. But because of these silly mistakes, because maybe we are not aware, or maybe we don't know, okay, lack of knowledge, we actually tend to lose marks. Now when you are leaving a space in the first paragraph, if you are leaving, say, 2 finger space before starting the paragraph, in the next paragraph you should not leave a line. Again you have to leave 2 finger space and then start writing your second paragraph. In another part of writing, if you are not the another type is when you are not leaving 2 finger space in your first paragraph. In that case you have to leave one line before you start the second paragraph, and again in second paragraph you are not going to leave 2 finger space. Directly you will start writing. So that these are two different types of writing. We tend to do mistakes over here. First paragraph we write the way we write, the second paragraph it clicks to our mind and we either leave the space, or the paragraphs differ from each other. So that should not be the case, and please when you write, keep a check on this, because writing styles is an art, and there is nothing which you can actually memorize or you can do rote learning, but then it is an art and you need to build this art in yourself. So let's start let's continue with the concept. I'm
just going to explain you. But when you're writing body, ensure that you're not writing two paragraphs. If there are two paragraphs, then you are not actually writing two paragraphs in two different style. That is what I mean to say. Closing. The closing means goodbye. The first word of the closing begins with a capital letter and ends with a comma. Same like greetings. Closing का मतलब होता है saying goodbye. जैसे greeting का मतलब होता है saying hello. उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और एंड करेंगे हम कॉमा से, जैसे कि सिंसियरली या योर loving sister, your loving brother, whatever it is. I will give you some samples of writing a closing in an informal letter. Samples for closing can be your friend, yours truly, sincerely, respectfully yours, your son, your daughter, love, with love, etc. And the final part is signature. Now signature is basically writing your name or signing your letter. That is called signature. Let us now start with the sample letter. We understood the parts of letter, the types of letters. We understood the various parts in detail. Now let us start with the sample letter. Here first we will discuss the format of letter, and then I'll give you your home assignment and the copy work. Let us see the example which is given on page number 96, question number F. Here in this example, Soumya is celebrating her birthday. She wants to invite some of her friends to a small party at her house. सौम्या अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और वो अपने कुछ फ्रेंड्स को अपने घर पे जो पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की है उसमें बुलाना चाहती है. यहाँ पे सौम्या का लेटर आपको ब्लैंक्स के तौर पे दिया गया है. वो ब्लैंक्स फिलअप करके आपको उसका लेटर पूरा करना है. क्योंकि अभी आप थर्ड स्टैंडर्ड में हैं, आपको यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लेटर लिखने नहीं दिया है. आपको यहाँ पे ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसे फिल करके आपको लेटर पूरा करना है. सो हम ये आंसर देख लेते हैं. यहाँ पे आपको एक चेंज करना है, दैट इज़ डेट. अगस्त 23, 2021 की जगह पर आप यहाँ पे आज की डेट लिख सकते हैं. अब हम लेटर स्टार्ट करते हैं. डियर आस्था, आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एट. आप कौन से टाइम पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, शाम को 6 बजे कर रहे हैं या मॉर्निंग में कर रहे हैं, वो टाइम लिखना है. ऑन डैश डे, कौन से डे और कौन से डेट को, यानी अगर आप मंडे को कर रहे हो और आपकी डेट है से 28 जनवरी 2021, तो आपको पूरा लिखना है. डे भी लिखना है और डेट भी लिखनी है. ठीक है. एट माई हाउस, प्लीज़ डू डैश. प्लीज़ डू, आप यहाँ पे क्या करने वाले हो वो आपको ब्लैंक में लिखना है. मैं आपके साथ में आंसर शेयर करूँगी, वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है. ब्रिंग योर सिस्टर निष्ठा, और निष्ठा के साथ आप और किसी को भी बुलाना चाहते हैं और भी कोई भाई बहन है तो कॉमा करके नाम लिख सकते हैं, विथ यू. ठीक है. आई एम डैश, मैं क्या कर रही हूँ, रुचि, शिखा और अक्षय को भी बुला रही हूँ. तो आई एम इन्वाइटिंग रुचि, शिखा एंड अक्षय ऑल्सो. वी विल हैव फन टुगेदर. वी विल हैव फन टुगेदर, हम साथ में मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे. योर सिंसियरली सौम्या. तो इतना छोटा लेटर है, इसके आंसर्स मैं आपको लिख के दूंगी और वो आंसर्स के साथ में आपको इसी फॉर्मेट में अपना लेटर अपनी नोटबुक में इन गुड हैंडराइटिंग यू हैव टू कॉपी. करेक्ट. फिर देखते हैं दूसरा. अब देखिए, जब हम मेल करते हैं, कोई भी हमारी पोस्ट हम भेजते हैं, तो हम एनवलप के ऊपर कुछ चीज़ें लिखते हैं. वो चीज़ें क्या है वो आपको एक्सरसाइज जी में समझाई हुई है. ठीक है. हम लिखते हैं नाम, हम किसे भेज रहे हैं तो रिसीवर का नाम, उसका एड्रेस, कौन से एरिया में कौन से सोसाइटी में रहता है, हाउस नंबर के साथ में हम लिख के देंगे, प्लस हम स्टेट और सिटी का नाम भी लिख के देंगे अलॉन्ग विथ पिन कोड. ये इसलिए लिखा जाता है सिटी नेम एंड पिन कोड, जिससे कि हम कहाँ मेल भेज रहे हैं, कहाँ हम अपना लेटर भेज रहे हैं, वो से
प्रॉपर एड्रेस पे मिल जाए। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर, अब देखिए एफ एग्जाम्पल में क्या था, सौम्या ने आस्था को लेटर लिखा। अब आस्था को लेटर मिला तो वो भी तो सौम्या को लेटर लिखेगी, जिसे हम कहते हैं रिप्लाई। ठीक है, तो अब आस्था ने सौम्या को उसके बर्थडे पार्टी के इनविटेशन के लिए एक रिप्लाई भेजा। तो वो वहाँ पे आप क्या करोगे, सौम्या का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, दिस एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 97 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सौम्या का एड्रेस लिखेंगे, फिर डियर सौम्या, क्योंकि आस्था लिख रही है इसलिए सौम्या का नाम आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन या बर्थडे इनविटेशन। ठीक है, आई विल ट्राई टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आई विल श्योरली ज्वाइन एंड आई विल ब्रिंग डैश। अब वो किसको लेकर आने वाली है, उसकी पहले नाम क्या दिया था, निष्ठा। अगर और ब्रदर एंड सिस्टर है तो उनके नाम कॉमा करके लिखेंगे। एंड आई विल ब्रिंग निष्ठा विथ मी, अलॉन्ग विथ मी, लव आस्था। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। तो आज आप ये 2 लेटर्स कॉपी करेंगे नोटबुक में, और फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी। वो एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में इसी फॉर्मेट में लिखना है, खुद से लिखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप आगे मत बढ़िएगा। प्रैक्टिस करने के लिए पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होगी वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको लेटर में थोड़ा भी डाउट होगा तो प्लीज़ डू नॉट जंप फॉर टू फिनिश द एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है, पहले आपका समझना ज़रूरी है। ओके, और आपको जब समझ में आ जाए तो खुद से लेटर लिख के देखिए, क्योंकि जब हम खुद से कोई काम करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।